Okay, you have to learn reproduction with respect to the plants also and with respect to the animals also. So I will be teaching you the reproduction with respect to the animals. In animal, you have to learn only and only about the human being. You have to learn all the reproductive parts of the human being. You have to learn about how the sperm has been formed, how the egg has been formed, how the fertilization takes place. Okay, what are the developmental stages in the pregnancy? Then the last part of the lesson is different types of diseases and then reproductive health. Okay, so this particular lesson is very important, has highest weightage as usual. Hamesha se hi this lesson has a highest weightage. The reason behind is to educate the people, because in today's life we can see there are many myths about this topic. Okay, so to clear all the myths, to clear all the doubts of the students, this lesson you have to learn, and therefore it has been given the highest weightage. It is an awareness topic. You can think in that direction also. It's an awareness topic. So for the introduction, you will be telling me what do you mean by the reproduction. If we split the word reproduction, वापस से produce करना, ठीक है, वापस से produce करने को हम क्या कहते हैं? Reproduction. ठीक है. Now in all animals, they all produce like begets like. Means what? A cat will always produce a cat. A lion will always produce a lion. A human being always produces a human being. So how is it possible? Have you ever thought of it? कि ऐसे कैसे होता है कि सिर्फ कैट को कैट ही होता है, उसका जो नया बच्चा होता है वो कुछ डिफरेंट नहीं दिखता, ऐसे क्यों होता है? Can anybody tell me why it is so? Have you understood my question? ऐसा क्यों है कि जो कैट का जो बच्चा है वो सेम कैट की तरह ही दिखता है, उसके भी दो पैर, मतलब ही ऑल्सो वॉक्स ऑन द 4 legs, ठीक है, फेशियल स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जेनेटिक डिफरेंस है, बट हाउ दे लुक सेम? एनीवन? Miss heredity की वजह से। ओके, यू आर टू क्लोजर टू द आंसर बेटा. इट इज हेरिडिटरी. अच्छा, हेरिडिटरी किसकी वजह से होता है? जीन्स की वजह से। अच्छा, तो जीन्स जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट है? क्रोमोसोम। Very good. So this is the perfect thing, that is a chromosome. The number of chromosome decides that particular organism. ठीक है, हर एक organism का एक परफेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करेंगे तो वी आर हैविंग 46 क्रोमोसोम. अगर आप गोरिल्ला की बात करोगे तो उसके पास 48 क्रोमोसोम्स है. डॉग को बोलोगे तो डॉग के पास अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, कैट के पास अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. तो आपको समझ में आया? तो ये जो वेरिएशंस है, और कैट हमेशा कैट ही रिप्रोड्यूस करेगी, डॉग हमेशा डॉग ही रिप्रोड्यूस करेगा, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज बीन पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. Now, how come the same number of chromosomes are being passed on? The very important process, that is the meiosis. Okay, in the meiosis, what happens? There is a formation of the haploid gametes. Haploid means half set of gametes. तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही में बॉडी में हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम बनाता है, जिससे कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो डिप्लॉइड बनेगा उसके अंदर वही सारे कैरेक्टर्स होंगे और उतने ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से बेटा? Yes. So this is what about the reproduction. So let us start with this. You have already learned in your lower classes there are two different types of reproduction, as the asexual reproduction and the sexual reproduction. Asexual मतलब जिसमें दो इंडिविजुअल, दो मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व नहीं है, या फिर आई कैन से दैट जहां पर मियोसिस नहीं हो रहा है, या फिर आई कैन से दैट जहां पर गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. मतलब जहां पे एक सिंगल पेरेंट से ही नया प्रोजेनी फॉर्म हो रहा है. प्रोजेनी का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोजेनी का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चा. ठीक है, तो प्रोजेनी बोलो या ऑफस्प्रिंग बोलो, उसका मतलब सेम होता है, उसका मतलब होता है यंग वन. ठीक है, तो जब एक ही पेरेंट से नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि यहाँ पे क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो सिंगल पेरेंट के जो भी कैरेक्टर्स है वो प्रोजेनी में जाएंगे, इसीलिए कहा जाता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मोस्टली क्लोन्स फॉर्म होते हैं। क्लोन्स मतलब एग्जैक्टली आइडेंटिकल, ठीक है। क्लोन्स का मतलब क्या होता है, एकदम सेम टू सेम, क्योंकि यहाँ पे दो गैमेट्स नहीं फ्यूज हो रहे हैं ना। वेरिएशन तो तब आएगा, वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस तो तब आएगा जब दो अलग अलग गैमेट्स फ्यूज होंगे, मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अगेन आपने ये बात बताने के लिए आई कैन से दैट फॉर एग्जाम्पल सिंगल पेरेंट इज देयर, मीन्स मम्मी एंड पापा इज देयर, पर अगर समझो एक मम्मी एंड पापा को 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चे सेम नहीं दिखते। पेरेंट्स तो एक ही है ना, पेरेंट्स तो एक ही है, फिर भी अगर 2 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं तो भी वो सेम टू सेम नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? बिकॉज हर टाइम हाँ द अलग अलग टाइप का स्पर्म फ्यूजेस विद द एग। सो जो भी स्पर्म के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं दैट इज गोइंग टू फॉर्म, दैट इज गोइंग टू इनकलकेट इन द एम्ब्रियो। अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes. Okay, so अभी I will go back to my PPT once again. So asexual, एक बार मैं आपको टेक्स्ट बुक का दिखा देती हूँ कि what you have to learn. So asexual reproduction में आपको जिम्यूल फॉर्मेशन पढ़ना है। जिम्यूल फॉर्मेशन याद रखो बच्चों, इसमें होता है स्पॉन्जेस में होता है, स्पॉन्जिला के अंदर जिम्यूल फॉर्मेशन होता है। जिम्यूल फॉर्मेशन इन द स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला इज अ टाइप ऑफ स्पॉन्ज, पॉरीफेरा। फिर बडिंग हाइड्रा एग्जाम्पल है। देन रीजेनरेशन में प्लेनेरिया एग्जाम्पल है, प्लेनेरिया, ठीक है। तो आपको ये 3 पढ़ने के लिए है। तो अगेन आई विल गो बैक टू माय पीपीटी, whatever has been missing there I will teach you with the textbook. So now all of you can see this introduction part. So first is the biogenesis. Please beta whatever you feel important, जो भी आपको important लगता है बेटा, it's your thing that you have to note down, ठीक है। आप बोलोगे तो I will stop there, but you have to note down the important things. Biogenesis, please note down. Genesis का मतलब होता है बायो में, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, हाँ फॉर्मेशन या फिर ओरिजिन, ठीक है। सो बायोजेनेसिस इज द मेन फीचर ऑफ अवर लाइफ। बायोज का मतलब है लाइफ एंड जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन या फिर ओरिजिन। रिप्रोडक्शन का मतलब एज आई टोल्ड यू इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम वेयर, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। Why we should learn this? Because to know the perpetuations of the species. How we are going, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे dog is producing dog, cat is producing cat, तो we are species, they अलग अलग species के अंदर same type का chromosome होता है, because of which we thought of learning this reproduction. Parent का मतलब है who is going to reproduce, and offsprings का मतलब क्या होता है, offspring बोलो या progeny बोलो, इसका मतलब होता है young one, ठीक है। An organism can reproduce only after attaining a complete growth. Yes, this point is important. See, in human being also at puberty, puberty का मतलब आपको समझता है बेटा, puberty का मतलब होता है teenage, teenage को हम puberty बोलते हैं। मोस्टली विच स्टार्ट्स विथ 13 to 18 years of age. तो ये जो 13 और 14 years का एज होता है उस टाइम पे प्यूबर्टी के टाइम पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम एक्टिवेटेड, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ विच द गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट्स। अंडरस्टूड क्या बोला मैंने? प्यूबर्टी के टाइम पे एट द एज ऑफ 39 लेट अस से, ठीक है, 13 years of age में व्हाट हैपेंड कि मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं और वैसे ही फीमेल के अंदर बॉडी के अंदर भी रिप्रोडक्टिव स्टेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई कैन से दैट देयर आर 2 phases in the reproductive phase. There are 2 phases, juvenile phase and reproductive phase. जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? जब अर्लियर स्टेज, जब भी फिजिकल ग्रोथ
है बट रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं है, फिजिकल ग्रोथ है बट रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल मींस सारे स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी में बट सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिवेटेड नहीं। फिर नेक्स्ट टीनेज में क्या होता है, प्यूबर्टी में आने में क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव फेज एक्टिवेट हो जाता है और फिर ये एक्टिवेटेड कब तक रहेगा, लाइफ लॉन्ग तक रहेगा। अंडरस्टूड? सो by this point I have explained you two things, that is a juvenile phase and the reproductive phase. Understood? Juvenile phase and reproductive phase. Juvenile means earlier lifetime, मतलब puberty के पहले वाला phase को हम juvenile phase करेंगे, and after 18 this puberty we are calling it as a reproductive phase. Understood? Yes or no? Yes, ma'am. yes, Yes. Okay. अभी ये बात आई है तो आई विल एक्सप्लेन यू टू टाइप्स ऑफ ब्रीडर्स ऑल्सो। ब्रीडर्स, अभी अगर हम सारे ऑर्गेनिज्म को ध्यान में रखेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीडर्स। ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन करना, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स एंड द कंटिन्यूअस ब्रीडर। प्लीज नोट डाउन, सीजनल ब्रीडर्स एंड द कंटिन्यूअस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर का मतलब क्या होता है, जो पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर ब्रीडिंग करते हैं। ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं या रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एज गोट, शिप, डोंकी। ये सब क्या है, सीजनल ब्रीडर्स है, मतलब सिर्फ पर्टिकुलर सीजन में, मोस्टली विंटर सीजन में ही दे मोस्टली रिप्रोड्यूस। बट there is one more categories of animals, they are called as continuous breeder. Continuous breeders में human beings आते हैं, हाँ apes आते हैं, which can breed throughout the year. ऐसा कोई time limit नहीं है कि यही time में breeding होगा या reproduction होगा. So human beings and apes are also under the category of continuous breeders, means they can breed throughout the year. ठीक है? So the method of reproduction, yes, varies from species to species. Yes, there are different types of reproductive organs. ठीक है? If we talk about dogs and all, तो dogs में जो reproductive organ होता है उसके अंदर bone होता है, ठीक है। The reproductive organ which we call as a external this thing called as a penis, which you are going to learn. So in case of the dog, the penis has the bone which is called as a baculum. But in case of human being it is not so. So इसका मतलब क्या हो गया कि reproduction का तरीका, reproductive organs, they vary means they are different from species to species. ठीक है? So there are two types of reproduction as I've told you just now, asexual and the sexual reproduction. Sorry. तो सबसे पहले हम लोग asexual, हाँ यस बेटा बोलो। मैम वो दो फेजेस लिखवा के दो ना। क्या बेटा? मैम वो जुवेनाइल फेज वाला बताया था ना, वो लिखवा के दो ना। हाँ तो लिखो ना बच्चा, लिखो। यस। There are two phases. There are two phases in the lifetime. Sexually reproducing animal, ऐसे आप लिख सकते हो कि sexually reproducing animal shows two main phases. Sexually reproducing animal shows two main phases. दो main phases होते हैं, juvenile, 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 juvenile phase, और दूसरा वाला क्या है, reproductive phase. Reproductive phase. जुवेनाइल फेज में क्या आप लिखोगे? रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नॉट एक्टिवेटेड। ऐसे नहीं लिखो, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बोली थी। हाउ यू विल राइट डाउन? सो राइट डाउन, it represents physical growth. It represents physical growth. It represents physical growth
Put a comma. Animal cannot reproduce sexually in this phase. Animal cannot reproduce sexually in this phase. ऐसे लिखो. वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा सिंपल टर्म में बताया. आप ऐसे मत लिखना कि एक्टिवेट है और नहीं एक्टिवेट है. ठीक है, अंडरस्टूड क्या बताया मैंने? मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. इट रिप्रेजेंट द फिजिकल ग्रोथ. ठीक है, कॉमा, एनिमल कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन दिस फेज. मतलब फिजिकल ग्रोथ होता है पर एनिमल रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता. अब रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? राइट डाउन. फिजिकल ग्रोथ इज ऑलमोस्ट ओवर. फिजिकल ग्रोथ इज ऑलमोस्ट ओवर, कॉमा, animal can reproduce sexually. Animal can reproduce sexually. Understood? ब्रीडर्स भी लिख लो. इसकी इसी बहाने दो टाइप के ब्रीडर्स भी लिख लो. लिखो. टू नेक्स्ट हेडिंग डालो. ब्रीडिंग पैटर्न. ब्रीडिंग पैटर्न. BREEDING. ब्रीडिंग पैटर्न. ये किसमें हम बात कर रहे हैं? सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात कर रहे हैं हम. ब्रीडिंग पैटर्न इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल. ब्रीडिंग पैटर्न इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स. So again it is of two types. सीजनल ब्रीडर. सीजनल ब्रीडर जो सिर्फ पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं. और दूसरा कौन सा बताया मैंने? कंटिन्यूअस ब्रीडर. कंटिन्यूअस ब्रीडर. For seasonal breeder, write down. For seasonal breeder, when animal breeds in a particular season. और कंटिन्यूअस में लिखोगे when the animal breeds throughout the year. Throughout the year. When the animal breeds throughout the year. एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो. सीजनल के लिए मैंने क्या एग्जाम्पल बताया था आपको? गोट. हाँ, गोट है, शिप है, डोंकी है. और कंटिन्यूअस के लिए आप क्या एग्जाम्पल लिखोगे? ह्यूमन बीइंग्स, एप्स. Now, let us first describe this sexual reproduction. In this particular lesson, you have to learn about the sexual reproduction in detail. ये आपको डिटेल में पढ़ना है sexual reproduction. But before starting with the sexual, we should have some idea of asexual reproduction. So the very first point, no fusion of gamete. है ना? asexual मतलब यहाँ पे gametes बनते ही नहीं है. एक ही parent होता है तो गैमेट्स बनते ही नहीं है. पेरेंट से ही नया फॉर्मेशन होता है. तो नो फ्यूजन ऑफ गैमेट. तो जब भी कभी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अगैमोजेनी या अगैमोजेनेसिस या फिर एपोमिक्सिस. यू कैन नोट डाउन दिस टर्म्स. जब भी गैमेट नहीं फ्यूज होता है उस कंडीशन को हम कहते हैं अगैमोजेनी या फिर अगैमोजेनेसिस या फिर अपोमिक्सिस. यहाँ पे क्या खास बात होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? देयर इज ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व. ऑफस्प्रिंग्स मतलब जो न्यू बर्न जो बच्चा है, हाँ, वो कैसा होता है? वो क्लोन होता है. एकदम आइडेंटिकल होता है टू द पेरेंट. क्लोन का मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट. क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि क्लोन फॉर्म हो रहा है तो कोई वेरिएशंस तो हमें देखने को मिलेगा ही नहीं. ठीक है. रेयरली ड्यू टू सोमैटिक म्यूटेशन नॉट हेरिटेबल. अगर वेरिएशन देखने को मिल भी गया तो कभी कभार, बहुत ही रेयर है, बिकॉज ऑफ द सोमैटिक म्यूटेशन. सोमैटिक का मतलब है बॉडी सेल का म्यूटेशन की वजह से. बट ये जो म्यूटेशंस है दे आर नॉट हेरिटेबल, मींस दे आर नॉट बीन पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन.
It is very quick and a simple process. Occurs even in unfavorable condition. अभी हम unfavorable के लिए example पढ़ेंगे, Gemule पढ़ेंगे अभी हम. It is mostly seen in the lower animals like the protist, sponges, cylindrids, and some flatworms. Shall I move forward? Yes, beta. Shall I move forward? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. So there are different methods of asexual reproduction. Fission. Again, ये जो दोनों चीजें I hope आपने आपके lower classes में भी पढ़ा है. तो फिशन अगर हम बोलेंगे तो हमारे सामने एक ही एग्जाम्पल आता है, दैट इज अमीबा. आपने अमीबा पढ़ा होगा. पैरामोशियम इज आल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल. देख सकते हो आप फिशन में क्या हो रहा है बेटा. देखो यहाँ पे एक सिंगल सेल है, उसके अंदर ही वो दोनों साइड से ऐसे कंप्रेस हो रहा है, और कंप्रेस होते ही दो इंडिविजुअल डॉटर सेल्स फॉर्म हो जा रहे हैं. ठीक है, नोट डाउन. बायो में जब एक सेल से दो सेल बनते हैं तो उसे हम डॉटर सेल कहते हैं. ठीक है, प्लीज नोट डाउन. एक बार एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि मैम इसको डॉटर ही क्यों बोलते हैं. बिकॉज बेटा डॉटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसी से वापस नया, अभी ये जो दो है इसी से चार बन जाएंगे. तो वी कैन से ना कि डॉटर इज गोइंग टू बिकम अ मदर, सो दैट वे इट इज बीन कंसिडर्ड. ठीक है, सो अ सिंगल सेल, there is a constriction in between, and then there is a formation of two cells, two daughter cells, or a two new individuals can be formed. So this method is called as a fission. बर्डिंग का मतलब क्या होता है कि पेरेंट के बॉडी पे आप देख सकते हो कि एक आउटग्रोथ बन रहा है. देखो एक छोटा आउटग्रोथ बना जैसे हमने बर्ड बोला, फिर वो धीरे धीरे बर्ड और बड़ा हुआ, फिर वो पूरी तरह से मैच्योर हो गया. जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तो पेरेंट से डिटैच हो जाएगा. हाँ, पेरेंट से सेपरेट हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा. सो जब कोई आउटग्रोथ, स्मॉल आउटग्रोथ पेरेंट के बॉडी पे फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं बर्ड. एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बर्डिंग. बर्डिंग व्हिच कैन बी सीन इन हाइड्रास. हाइड्रा के अंदर देख सकते हैं हम, और भी एग्जांपल्स है. कोरल्स के अंदर देख सकते हैं, कोरल्स के अंदर, या फिर सम एसिडियंस के अंदर भी हम देख सकते हैं. ठीक है, सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स. हाँ बेटा, ईस्ट में भी. हाँ यस, वेरी गुड बेटा. ईस्ट में भी, शाबाश, वेरी गुड. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फिशन एंड द बडिंग. नाउ जिम्यूल फॉर्मेशन. सबसे पहली बात बेटा, लेट मी टेल यू कि जिम्यूल कब बनता है. देखो ये किसके अंदर पाया जाता है, जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होते हैं ना, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस. अब फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस का प्रॉब्लम क्या है बेटा कि नदी में है या तालाब में है. नदी या तालाब को हम फ्रेश वाटर बॉडीज कहते हैं ना. तो जब भी गर्मी का दिन आता है तो पानी सूख जाता है. कई बार ऐसा होता है कि पानी सूख जाता है. तो अगर पानी सूख गया बेटा तो ये स्पॉन्जेस तो मर जाएंगे ना. तो फिर स्पॉन्जेस अपने आप को रहने के लिए, मीन्स स्पॉन्जेस अपने आप को नेक्स्ट जब बारिश आएगा तभी भी रहने के लिए व्हाट दे प्रोड्यूस अ जिम्यूल. अब जिम्यूल क्या है, इसके अंदर सारे सेल्स स्टोर्ड है. अगर पानी नहीं भी रहेगा ना, तालाब का पानी सूख गया समझो, या रिवर का पानी सूख गया, तो ये जिम्यूल पड़े रहेंगे सॉइल के अंदर. ठीक है, जिम्यूल पड़े रहेंगे सॉइल के अंदर, और जैसे पानी आएगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये जिम्यूल में से सारे फटाफट आर्कियोसाइट्स बाहर आएंगे, और सब आर्कियोसाइट से नए नए स्पॉन्जेस तैयार हो जाएंगे. अंडरस्टूड? तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर. सो इट इज इंटरनल एंडोजीनियस बड. इसका मतलब क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू कलर के गोल गोल स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज, विच आई हैव लेबल्ड एज आर्कियोसाइट्स. ये आर्कियोसाइट्स अंदर वाले बर्ड है, मतलब बॉडी के अंदर है. ये इस सर्कल के अंदर है ना, इसीलिए हम कह रहे हैं एंडोजीनियस. एंडोजीनियस मींस विच आर प्रेजेंट इनसाइड, इंटरनल. किसके अंदर देखने के लिए मिलता है जिम्यूल? फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में.
क्यों देखने के लिए मिलता है? टू ओवरकम द अनफेवरेबल कंडीशन। अभी मैंने आपको बताया कि अनफेवरेबल कंडीशन क्या है, जैसे तालाब का पानी सूख जाना, रिवर का पानी सूख जाना, ठीक है। तो जब ये सूखने लगता है पानी, तो स्पॉन्ज क्या करता है कि जिम्यूल बनाकर छोड़ देता है, ठीक है। जिम्यूल्स आर द इंटरनल बर्ड्स। इंटरनल बर्ड्स है इसलिए तो हम इसको एंडोजीनियस बर्ड कहते हैं, which are resistant to desiccation. What do you mean by desiccation? Desiccation का मतलब होता है बेटा ड्राइंग अप। क्या होता है? प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ यू, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे बाद में। डेसिकेशन का मतलब क्या है? आप ये भी केमिस्ट्री में भी शायद पढ़ोगे, आई डोंट नो यू आर हैविंग इन केमिस्ट्री और नॉट, ठीक है। सो डेसिकेशन का मतलब क्या होता है? ड्राइंग अप, ठीक है। कुछ नदियां तालाब ऐसे हैं जहां पे बहुत ठंडा होता है, तो फ्रीजिंग कंडीशन में भी अपने आप को बचा के रखने के लिए। व्हाट इज एनॉक्सिया? एनॉक्सिया किसी को पता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अंडरस्टूड। सो ये तीनों कंडीशन में अगर ऐसा कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आ रहा है कि सूख गया है या बहुत ज्यादा ठंडा है या फिर ऑक्सीजन की कमी है, तो तुरंत क्या करेगा ये स्पॉन्ज? क्या बनाएगा? दिस जिम्यूल बनाएगा। You can see that there is aggregation or accumulation of these archaeocytes. These archaeocytes are been protected, ठीक है। there is a protection of outer layer, inner layer, और साथ में बहुत सारे हमें ऐसे काटे काटे के जैसे structures नजर आ रहे हैं, which is called as a spicules. yeah. On returning of the favorable condition, क्या होता है? ये जिम्यूल हैच होगा, ठीक है, फूटेगा, और इसमें से बहुत सारे न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म होंगे। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल्स आर द स्पॉन्जिला एंड द स्पॉन्जिया। Understood? Yes, ma'am. Shall I move forward? If you want to write down something, you can. I hope you have written the meaning of anoxia also. ऑक्सिया वर्ड कहीं पे भी होगा तो इसका मतलब इट इज रिलेटेड टू द ऑक्सीजन। एनऑक्सिया मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया मतलब कम ऑक्सीजन। अंडरस्टूड? मीन्स ये सिस्ट फॉर्मेशन के जैसा होता है। सिस्ट मीन्स अलग होता है बेटा। सिस्ट के अंदर क्या होता है कि स्पेस होता है, हॉलो स्पेस होता है जिसमें वाटर होता है। सिस्ट इज डिफरेंट Yes. थिंग। सिस्ट हम किसको बोलते हैं बेटा? कि Amoeba form एक मेम्ब्रेन फॉर्म हुआ है और मेम्ब्रेन के अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, हाँ, तो उस स्ट्रक्चर को हम सिस्ट कहते हैं। Yes. कोई हॉलो स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, चाहे फिर वो खुद ही ऐसे हॉलो ही है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम सिस्ट बोलते हैं। इसको हम सिस्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पूरा भरा है, आर्कियोसाइट से भरा है, तो ये सिस्ट नहीं है, ठीक है। मीन्स अमीबा में सिस्ट फॉर्मेशन से ये होता है ना अनफेवरेबल कंडीशन में। हाँ, यस यस यस, Multiple fission. मल्टीपल फिशन, करेक्ट, Yes. ठीक है। So this was about the gemule. Next is the regeneration. नाम में ही उसका मतलब समझा है, पढ़ा है। री मीन्स वापस से जनरेट होना, वापस से जनरेट होता है। अब कुछ एनिमल्स के पास ये है कि उनके अगर कोई ऑर्गन लूज हो गए, समझो, कोई उनका बॉडी पार्ट अगर लूज हो गया, उनका कोई कुछ भी चीज अगर, जैसे स्टारफिश आपने पढ़ा है कि स्टारफिश का अगर एक भी आर्म टूट गया, 2 आर्म टूट गया, तो वापस से रीजनरेट हो सकता है। वॉल लिजार्ड जो घर में छिपकली होती है, उसका अगर टेल कट गया तो वापस से रीजनरेट होता है। तो कुछ एनिमल्स के पास ये प्रॉपर्टी होता है कि वो कोई भी अपना बॉडी पार्ट रीजनरेट कर सकते हैं। So this is a special quality, ठीक है, which are been seen in many animals. But सबसे फैसिनेटिंग क्या है? प्लेनेरिया की बात। हमने क्या पढ़ा कि जैसे स्टारफिश का आर्म टूट गया तो रीजनरेट होता है, लिजार्ड का टेल कट गया तो रीजनरेट होता है, पर प्लेनेरिया में देखो बेटा ये कितना फैसिनेटिंग है। इसको मैंने आधा कट कर दिया, अब सोचो जरा, मैंने इसके आधे कट कर दिया तो मतलब इसके सारे ऑर्गन्स भी तो बीच में कट गए ना, इसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो कट गया, बट फिर भी
ये एक ऐसा एनिमल है, अगर मैंने इसको आधा कट कर दिया तो ऊपर के पार्ट का नीचे का बॉडी आ जाएगा और नीचे के पार्ट का ऊपर का बॉडी रीजनरेट हो जाएगा. सो दिस इज अ स्पेशल कैटेगरी विच इज बीन शोन बाय द प्लेनेरियंस. ठीक है, बाकी के एनिमल्स भी रीजनरेशन दिखाते हैं बट उनका कोई बॉडी पार्ट्स रीजनरेट कर सकता है. पर प्लेनेरिया ऐसा है कि मैंने उसको अगर आधा कट कर दिया तो आधा कट करने के बाद अब जब इमेजिन कर सकते हो उसका उसके डाइजेस्टिव सिस्टम कट गया है, उसके बाकी के सारे सिस्टम्स कट गए हैं, फिर भी ऊपर के पार्ट का नीचे आ जाएगा, नीचे के पार्ट का ऊपर रीजनरेट हो जाएगा. आप देख सकते हो कि ठीक है, ऊपर के पार्ट में नीचे का पार्ट रीजनरेट हो गया, नीचे के पार्ट में ऊपर का पार्ट रीजनरेट हो गया. ठीक है. So planarians, which are non-parasitic flatworms, when we are cutting it into two pieces, fragments, ठीक है, तो each piece can regenerate into a complete organism. ठीक है, बाकी के सभी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लास्टिमा, दे आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग इनटू द बॉडी पार्ट्स. बाकी के एनिमल्स बॉडी पार्ट्स ही रीजनरेट कर सकते हैं. Immortal under the edge of the knife. More often the anterior part exerts a pull. ठीक है, कैसे ये रीजनरेट होता है कि अगर anterior part कटा है तो it will exert a pull over the posterior part. ठीक है, and posterior part will which holds on. The middle part constricts and breaks. Missing part is regenerated, thus two worms are formed again. Okay, so this is the fascinating part of this particular animal. Understood? Yes. You can see this blastima. Blastima का मतलब it is a group of mesenchymal cells. You can note down. It is a group of mesenchymal cells. हेलो मैम. Yes बच्चा. मैम वो पॉइंट नहीं समझा, इमोर्टल अंडर द एज ऑफ नाइफ. इमोर्टल का मतलब क्या होता है बेटा? जो कभी मर नहीं सकता उसको हम इमोर्टल बोलते हैं ना. यस. तो अंडर द एज ऑफ नाइफ मीन्स मैंने उसको कट कर दिया ना बेटा. अच्छा समझा मैम. मतलब इमोर्टल मतलब जो कभी मर नहीं सकता. तो अंडर द एज ऑफ नाइफ मीन्स मैंने ऐसे बोलने के लिए बताया है कि मतलब अगर आप उसको काट भी दोगे, नाइफ से कट भी कर दोगे दो पार्ट में, तो भी वो इमोर्टल है, कभी मर नहीं सकता, ऐसा. ओके मैम. ब्लास्टिमा का मतलब लिखा बेटा आपने, इट इज अ ग्रुप ऑफ mesenchymal cells. which are able to regenerate. ये ब्लास्टिमा के वजह से ये लोग रीजनरेट हो सकते हैं. अगर हमारे पास भी ये ब्लास्टिमा होता तो फिर हम भी इमोर्टल हो जाते. अंडरस्टूड? जिसको बोलते हैं ना वो अजय और अमर वगैरह वगैरह सब टाइप, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ब्लास्टिमा. ये ब्लास्टिमा के वजह से ही ये इमोर्टल है. ओके, नाउ ये तो आपको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना था. नाउ इन डिटेल, नाउ द मेन lesson starts from here. In detail you have to learn the sexual reproduction in animals. So in sexual reproduction we are learning that there is a fusion of male and female gamete. क्योंकि there is a fusion of male and female gamete तो इसे हम क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिस. ये सारे टर्म्स जो बेटा मैं यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है वो सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आइदर फॉर एमसीक्यू और फॉर 1 मार्क क्वेश्चन. ठीक है. सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, एम्फीमिक्सिस का मतलब क्या होता है? एम्फीमिक्सिस मतलब क्योंकि there is a fusion of male and female gamete, fusion of two gametes, therefore it is called as amphi. amphi का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे आपने amphibians पढ़ा है, मतलब जो डुअल चीज कर सकते हैं उसको हम amphi बोलते हैं. because here two parents are involved, male and female. यहाँ पे meiosis gametes में होता है और mitosis somatic cells में होता है. meiosis gametes में होता है और इसी के कारण हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है.
There is a variation in the offsprings which is forming the basis of the evolution. It is a complex and a slow process. Only in the favorable environment it takes place. As I've told you just now, ये देखो यहाँ पे भी वही चीज है. There are two phases, juvenile and the maturity phases. I've explained you about the seasonal and the continuous breeding also just now. Now, reproductive cells or gametes, they formed in a specialized organ which is called as the gonads. Gonads. Gonads का मतलब क्या है? Testes gonad है, ovary gonad है. जहाँ पे gametes बनते हैं उसे हम gonads कहते हैं. Yes, female gametes are less in number, large in size, immobile. Immobile मतलब उसमें कोई locomotion नहीं हो सकता as compared to the male gamete. मेल गैमेट हमेशा मिलियंस में बनते हैं, मिलियंस में. और फीमेल गैमेट, ठीक है, मोस्टली तो 1 ही एग बनता है, पर कभी कभी ऐसे जरूरी नहीं है. देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ 2 to 3 एग्स आल्सो, ठीक है, बट मोस्टली 1 ही एग बनता है. पर मेल में जो स्पर्म बनता है वो मिलियंस में बनता है. अंडरस्टूड दिस ऑल पॉइंट्स? किसी को भी कोई भी पॉइंट में डिफिकल्टी है तो यू कैन आस्क मी. ईच एंड एवरी पॉइंट is very, very important. Each and every line is very, very important. So please go through nicely and properly. Male or female में at time of puberty we can see the presence of secondary sexual characters, है ना? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? जिसके वजह से एनिमल डाइमॉर्फिक हो गया, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. याद है आपको, मैंने किंगडम एनिमेलिया पढ़ाया था, तभी मैंने आपको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बताया था कि क्या होता है. डू यू रिमेम्बर? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है जब हम एनिमल को बाहर से देख के पहचान सकते हैं कि वेदर इट इज मेल और अ फीमेल, इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. तो ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन बींग्स के अंदर देयर इज अ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म सीन. हाउ? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वी कैन सी दैट देयर आर मेनी secondary sexual characters seen in the male as well as in the female. अगर मैं मेल की बात करूंगी तो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? मूंछ का आना, दाढ़ी का आना, है ना, प्यूबिक हेयर ग्रोथ होना, चेस्ट पे हेयर का ग्रोथ होना, मस्कुलर बॉडी होना, एडम्स एप्पल फॉर्म होना. अंडरस्टूड? और फीमेल के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होता है? डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रॉडनेस ऑफ द पेल्विक रीजन, हाई पिच्ड वॉइस. तो ऑल दिस थिंग्स आर द मींस वी कैन डिफरेंशिएट द मेल एंड फीमेल. सो उसे हम कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किसकी वजह से होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के वजह से होता है. फिर आप पूछोगे कि मैम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किसकी वजह से होता है? तो वो आप पढ़ोगे इस लेसन में. इट इज बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स. एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर पेज? No doubt na bachcha. Shall I move on? Yes, ma'am. चलो recap करो. Distinguish, do the recap. Asexual and sexual reproduction में क्या क्या आपने पढ़ा? Asexual में there is no fusion of gametes. Sexual में there is a fusion of gametes. Asexual में there is one parent. Sexual में there are two parents. असेक्सुअल में ओनली माइटोसिस होता है. सेक्सुअल में मियोसिस सिर्फ गैमेट में और माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में. यहाँ पे कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे सिर्फ क्लोन्स मिलते हैं और यहाँ पे श्योरली वेरिएशन देखने के लिए मिलता है. और वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है. वी कैन सी दिस इन अनफेवरेबल कंडीशन आल्सो, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स ओनली एंड ओनली फेवरेबल एनवायरनमेंट. Yes, children, I need your help. Whether you have done with this, then only I will move forward.
So in this particular topic मैंने आपको asexual reproduction में 3 चीजें बताई. I've explained you gemule, I've explained you budding, I've explained you regeneration. 3 चीज ही है, बहुत सारे टाइप है asexual reproduction के, बट आपको सिर्फ 3 ही पढ़ने के लिए है. Asexual में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, but you have to learn only 3 of them. That is gemule, example spongilla, budding, example hydra, regeneration, example planaria. And in detail we are going to learn about the sexual reproduction. And वो भी किसका पढ़ने वाले हैं? Human being का ही sexual reproduction पढ़ने वाले हैं. Done? Yes. Yes, ma'am. So you just note down this. You have to do it. Note down this point. ये आपको homework है. Note down किया homework. What is this diagram? This is a paramecium. Fission. आपका नोट डाउन करके होगा तो मुझे बताओ बेटा. Then we will be starting with the sexual reproduction. Done? Yes. Yes. चलो ना. We are going to learn in detail about the human reproduction. This lesson is fully about the human reproduction. So what are the things which you have to understand over here? ये सारे topics हम cover करेंगे. All the which has been highlighted, you can see ये सारे topics we have to cover. Gametogenesis. हाँ, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन. गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस. अब गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हमें ऑर्गन्स भी पढ़ने पड़ेंगे. तो हम पूरा सिस्टम पढ़ेंगे. मेल सिस्टम पढ़ेंगे, फीमेल सिस्टम पढ़ेंगे, गैमेट कहाँ बनते हैं, गैमेट कैसे बनते हैं, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एवरीथिंग यू हैव टू लर्न इन डिटेल दिस गैमेटोजेनेसिस में. फिर आता है इंसेमिनेशन. सीमेन. सीमेन का मतलब होता है स्पर्म एंड एक्सेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन. यू विल बी लर्निंग इन द फर्दर पार्ट, सिर्फ सुन के लो अभी. सीमेन का मतलब मैंने क्या बताया बेटा? स्पर्म प्लस एक्सेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन. मतलब फ्लूइड के अंदर जो स्पर्म होता है उन दोनों को मिला के हम सीमेन कहते हैं. तो इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसको हम बोलेंगे इंसेमिनेशन. मतलब कि फर्टिलाइजेशन होगा. फिर हम ह्यूमन बीइंग के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो. तो अभी आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है. फीमेल के ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में होता है, इसीलिए हम उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. फिर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा. फिर जाइगोट डेवलप होगा इनटू एम्ब्रियो, तो उसे हम कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस. फिर जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा. एक बार एम्ब्रियो फॉर्म हो गया मतलब कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, तो प्रेगनेंसी को ही हम जेस्टेशन कहते हैं. ठीक है. जो 9 मंथ जो होता है ना उसी को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं. प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ का जो ड्यूरेशन है उसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं. फिर 9 मंथ हो गया, अब क्या होगा? नॉर्मल डिलीवरी. नॉर्मल डिलीवरी को हम पार्चुरेशन कहते हैं. ठीक है. पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड. फिर you have to learn about what is the sexual dimorphism seen in both the male and female thing. Secondary sexual characters क्या क्या डेवलप होते हैं. आपको गोनाड्स पढ़ने हैं, आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स पढ़ने हैं. And then you will be learning with respect to the endocrine system also. Endocrine system means with respect to the hormones also.
कि कौन सा हार्मोन कब काम करता है, कौन से हार्मोन की वजह से क्या चीज डेवलप होता है। सो ये लेसन में आपको सिस्टम तो पढ़ना ही है, विद सिस्टम यू हैव टू कोलैबोरेट द हार्मोन्स आल्सो, कि हाउ द हार्मोन्स इज हैविंग द इन्फ्लुएंस ऑन द सिस्टम एंड हाउ द formation of the things is taking place. Okay, so we'll be starting with the, have you understood ये सारे points we have to learn? If you want you can note down also. जेनेसिस का मतलब आप लिख लो ब्रैकेट में फॉर्मेशन। तो जहां पे भी जेनेसिस लगेगा उसका फॉर्मेशन, गैमेट का जेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का जेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, जेस्टेशन मतलब क्या बताया मैंने, प्रेगनेंसी पीरियड, Pregnancy. एवरीथिंग यू विल बी लर्निंग, सिर्फ नोट डाउन द टर्म्स। हाँ बोलो, anybody was telling something, I am not able to hear, please एक बार रिपीट करो बच्चा। anyone was telling something? No, ma'am. Shall I move forward? Yes, Yes. ma'am. Yes. So now we have to learn about the male reproductive system. I request with all of you to take a screenshot of this page to draw the diagram like this. So this is a simple diagram, easy diagram which you can draw, because आप textbook में देखोगे तो आपको थोड़ा सा difficult लगेगा. You have to draw this diagram, and this diagram should be drawn only and only in the 14 to 15 lines, not more than that. Again I am repeating, 14 to 15 लाइंस में डायग्राम ड्रॉ करके आपका हो जाना चाहिए. तो आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? यू हैव टू लर्न अबाउट द टेस्टिस, सी द लेबलिंग्स, टेस्टिस, देन टेस्टिस के बाद यू हैव टू लर्न द एपिडिडाइमिस. ठीक है, वासा डिफरेंशिएट, प्लीज ऑल ऑफ यू लोकेट द लेबलिंग्स. आई एम जस्ट कमिंग इन 2 minutes, वेट. हाँ, व्हाट बेटा? I'm coming in 2 minutes. You just ask me after 2 minutes.
Yes, but all of you have seen the labelings. So testes के ऊपर you can see the structure called as the epididymis. From epididymis there is a long tube coming out called as a vasa deferens. Then vasa deferens is joining to form the ejaculatory duct. You can see the ejaculatory duct. Then the urethra. This is a pipe tube called as the urethra. Urethra is present inside the penis. This region is called as a penis. ठीक है, पेनिस के ऊपर भी एक स्ट्रक्चर होता है. We will be learning all that thing. And then there are accessory glands present. Well, which are the accessory glands? 3 main accessory glands. They are the seminal vesicle, Cooper's gland, prostate gland. कौन से हैं? Seminal vesicle, Cooper's gland, prostate gland. और बाकी के things we will be learning in detail. सबने नोट डाउन किया? ये इसका स्क्रीनशॉट लिया है बेटा? आपको यही डायग्राम ड्रॉ करना है. All of you have understood? Yes, ma'am. So let us first learn about the testes. You can see over here the labelings, testes. So it's an oval organ. How much? About 4 to 5 centimeter long and 2 to 3 centimeter wide and 3 centimeter in thickness. It is present extra abdominal. Means what? Present outside the abdomen cavity. And it has been lodged inside the structure which is called as the scrotum. Okay, it is present inside a pouch which is called as a scrotum. Next, in fetal condition, testes develops in the abdominal cavity itself. Later on, it descends in the 7th month of pregnancy. It descends out in the scrotal sac through a passage or a canal which is called as the inguinal canal. इसका मतलब क्या है? जो मेल बेबी, ठीक है, मेल बेबी, बॉय बेबी जब मदर के वूम में होता है तो ये जो टेस्टिस है ना, ये एब्डोमेन के अंदर ही होता है, एब्डोमेन कैविटी के अंदर ही होता है. पर जब 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होता है, 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होता है, उस दौरान ये जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाता है. अब ये बाहर आ रहा है तो कोई कैनाल से बाहर आएगा ना, कोई रास्ते से बाहर आएगा. सो दैट रास्ता इज कॉल्ड एज द इंग्यूनल कैनाल. ठीक है, और फिर वो बाहर कहाँ पर आके एम्बेडेड होता है? It is present inside the scrotal sac, जिसको हम स्क्रोटम भी कहते हैं. स्क्रोटम. अगर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह गया, अगर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नहीं हुआ, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म. क्रिप्टोकाइडिज्म. ऐसा बच्चा फिजिकली तो नॉर्मल ही होगा, मेंटली भी नॉर्मल होगा, पर प्रॉब्लम क्या होगा बेटा? ऐसे बच्चा cannot reproduce or cannot produce a young one. क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकता है? The answer to the question is about why the testes should be outside the body, inside the scrotal sac. So the testes is the gonad which produces the sperm. For sperm production, the temperature required is 2 to 3 degrees less than the body temperature. I am repeating my sentence. The testes produces sperm. For the sperm production, the temperature should be 2 to 3 degrees less than from the body temperature. For that, the testis is present extra abdominal. पर अगर ये testis abdominal cavity के अंदर ही रहेगा, तो sperm production नहीं होगा. और अगर sperm production नहीं होगा, तो वो जो child होगा, वो क्या होगा? Sterile होगा. Fertile नहीं होगा, sterile होगा. स्टेराइल का मतलब है जब कोई चीज, कोई एनिमल रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता तो उसे हम स्टेराइल कहते हैं. और ये जो स्क्रोटम है वो थर्मो रेगुलेशन का काम कर रहा है. थर्मो रेगुलेशन, इट इज मेंटेनिंग द टेम्परेचर. Now each testis is suspended by a spermatic cord and attached to the wall of scrotum by a layer which is called as the gubernaculum. आप देख सकते हो, there is a fibromuscular band present. Fibromuscular band. You can see the labeling, gubernaculum. So the testes are suspended by the spermatic cord and they are attached to the scrotal wall with the help of gubernaculum. This gubernaculum can also be called as a mesorchium.
ठीक है. Now, what is the function of the testes? To produce a sperm as well as to produce one hormone called as the testosterone. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है और स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है टेस्टिस. अंडरस्टूड? एनी डाउट? सो व्हाट आई एम आस्किंग टू समवन, रुको किसी को तो पूछती हूँ क्वेश्चन तो मुझे समझेगा. सार्थक, सार्थक, not there. प्रतीक, प्रतीक. Yes, miss. Yes बेटा. Question to you is कि why the testes should be extra abdominal? Why the testes should be extra abdominal? Why should it not be? Huh? Because it needs to produce sperm. It needs some particular temperature. Very good बेटा. पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं बोलना है आपको, ऐसा नहीं बोलना है आपको. क्या बोलना है? इट रिक्वायर्स 2 to 3 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर, ऐसा बोलना है. पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं बोलोगे आप. What you will be saying, अपना जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर की जरूरत होती है फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन. ठीक है, वेरी गुड बेटा. Yes, yes. ठीक है. So it requires less temperature, so it has been present inside. Where is the testis located? Where is the testis located? In the pouch called as dash. Anybody can answer? Bolo. Testis. Scrotum. Very good. Scrotum can also be called as a scrotal sac. Through which canal it is coming out? From the abdominal cavity. From which canal? Inguinal canal. Inguinal canal. शाबाश. Scrotums, जो testes है, it is attached to the scrotum by means of a fibromuscular band called as dash. Gubernaculum. Gubernaculum. Very good. Testes are suspended in the scrotum by dash. Testes are suspended in the scrotum by dash. Spermatic cord. Suspended का मतलब क्या होता है बेटा? You can understand ना. Suspended means लटका है. ठीक है. In the scrotal sac with the help of spermatic cord. Spermatic cord. Okay. So I hope testes का क्या काम है? Sperm बनाना और testosterone हार्मोन बनाना. ये testosterone हार्मोन ही में secondary sexual character को संभालता है मेल में. So I will move on to the next slide. अब हम समझेंगे कि टेस्टिस के ऊपर से जो आता है that is the epididymis. क्या है बेटा? It is the, देखो ये वाला स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ने जा रहे हैं. सॉरी, we are going to learn this structure epididymis. ये वाला स्ट्रक्चर अभी हम समझने जा रहे हैं. So epididymis, as you can see that it is highly coiled. It is highly coiled tube. कितना बड़ा है? Just imagine it is 6 meter long. 6 meter long. ठीक है. It is present on the posterior side of each testis. Now, epididymis connects the efferent duct from the rear of each testicles to the vasa deferens. I will show you the position. First, to understand that the epididymis is divided into 3 regions. जो ऊपर का रीजन है उसे हम कहेंगे कैप्यूट एपिडिडाइमिस, बीच वाले पार्ट को हम बोलेंगे कॉर्पस एपिडिडाइमिस और नीचे वाले पार्ट को हम कहेंगे कॉर्डा एपिडिडाइमिस. मतलब एपिडिडाइमिस में भी 3 रीजन्स हैं, कैप्यूट, कॉर्पस, कॉर्डा. ये याद रखो, हर जगह ये टर्म कॉमन है. इट्स अगेन अ बायो लैंग्वेज. ठीक है. कैप्यूट, बायो में कहीं पे भी अगर वर्ड कैप्यूट है मतलब कि ऊपर का पार्ट, कॉर्पस है मतलब नीच का पार्ट, कॉर्डा है मतलब लोअर पार्ट. ठीक है. प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ बायोलॉजिकल टर्म और अ लैंग्वेज. सो ऊपर वाला हिस्से को हम बोलेंगे कैप्यूट एपिडिडाइमिस, बीच वाले हिस्से को कॉर्पस और नीचे वाले हिस्से को हम कहेंगे कॉर्डा एपिडिडाइमिस. इसका काम क्या है एपिडिडाइमिस का? इसका काम क्या है एपिडिडाइमिस का? Sperm undergoes maturation
and acquires motility and fertility. टेस्टिस ने क्या किया, स्पर्म बनाया. अब स्पर्म क्या होगा, सिर्फ आगे 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 पास ऑन होगा. समझा? ये जो आपने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा, देखो बेटा, यहाँ पे स्पर्म बना, स्पर्म अब यहाँ से आगे 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 सिर्फ पास ऑन ही होते जाएगा और हर जगह में उसको कहीं ना कहीं मैच्योरेशन मिलेगा, मोटिलिटी मिलेगी, फर्टिलिटी प्रोवाइड होगी. जैसे ये आपने पाथवे देखा ना, टेस्टिस से कहाँ जाएगा, कैप्यूट एपिडिडाइमिस, फिर कॉर्पस एपिडिडाइमिस, फिर कॉर्डा एपिडिडाइमिस में जाएगा स्पर्म, फिर वासा डिफरेंस में जाएगा, फिर इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा, फिर यूरेथ्रा में जाएगा, फिर पेनिस के थ्रू बॉडी के बाहर जाएगा. अंडरस्टूड? तो हर रीजन में उसको कोई ना कोई, हर एक ऑर्गन जो है उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेगा. तो यहाँ पे एपिडिडाइमिस का काम क्या होता है कि मैच्योरेशन देना, उसको मोटिलिटी देना. मोटिलिटी मीन्स कि वो फास्ट भाग सके, एंड फर्टिलिटी प्रोवाइड करना. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Next is the vasa difference. The blue color part, you can see this is a vasa difference, blue color part. So epididymis will open into the, किसमें ओपन हो रहा है, वासा डिफरेंस में ओपन हो रहा है. एपिडिडाइमिस किसमें ओपन हो रहा है, वासा डिफरेंस में. अब ये कितना बड़ा है, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है. इट इज असेंडिंग इनटू द, असेंडिंग मतलब जा रहा है, इनटू द एब्डोमिनल कैविटी. अब ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंटर कर रहा है. अब ये बाकी का पार्ट एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, ये वाला हिस्सा. आप समझ के लो बेटा, ये आधा हिस्सा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है और आधा हिस्सा एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है. So now it will enter into the abdominal cavity again through the inguinal canal. वही same canal है, ठीक है. So it joins the duct of the seminal vesicle to form the ejaculatory duct. आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये देखो वासा डिफरेंस, देखो इसके ऊपर से आया, यहाँ पे seminal vesicle को ज्वाइन किया और फिर उसके बाद क्या बन रहा है, seminal vesicle जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां से क्या शुरू हो रहा है, ejaculatory duct शुरू हो रहा है. अंडरस्टूड? जहां तक ब्लू किया है यहाँ तक क्या प्रेजेंट होता है, वासा डिफरेंस. इट इज जस्ट अ पाथवे, पास जहां से वो जाएगा. So joins the seminal duct to form the ejaculatory duct and which will open into the urethra. इसका काम क्या है, transport of sperm. So just go through this also. Done? Next, you can see this yellow region called as the ejaculatory duct. It is a short duct formed by the joining of vasa deferens and the duct of the seminal vesicle. Vasa deferens और seminal vesicle के वजह से बनता है ejaculatory duct. कितना बड़ा है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है. अब ये किसके अंदर पास हो रहा है बेटा, you can see the prostate gland बाजू में, ये वाला prostate gland है. So it is passing through the prostate glands and it will open into this tube which is called as the urethra. इसका काम क्या है, अब देखो ejaculatory duct के पहले seminal vesicle open हो चुका था, तो इसका काम क्या होगा, अब carrying the seminal fluid and sperm into the urethra. Seminal fluid मतलब seminal vesicle का जो secretion है उसे हम seminal fluid कहते हैं. Seminal fluid को यूरेथ्रा के अंदर कैरी करना. आपको कोई भी टर्म नहीं समझेगा बेटा तो यू कैन जस्ट आस्क मी. अंडरस्टूड दिस मच, देन ओनली आई विल गो फॉरवर्ड. Next is the urethra. Now you can see the urethra. Now it has been labeled with 3 colors. You can understand the 3 colors: red color, green color, and the blue color. See, it is a narrow tube, fibromuscular tube, about 15 centimeter long. It is divided into 3 regions. Prostatic urethra, which carries only urine, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, urinary bladder है. आपने एक्सक्रीशन लेसन में पढ़ा था कि मेल के अंदर जो यूरेथ्रा होता है, इट इज कॉल्ड एज अ यूरिनोजेनिटल डक्ट, इफ यू रिमेम्बर.
Yes, The ma'am. male urethra is called as a urinogenital duct. क्यों? क्योंकि it carries both sperm as well as urine. तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर का हिस्सा है. तो आप देख सकते हो जो मैंने जो रेड कलर का पार्ट किया गया है इसमें सिर्फ यूरिन कैरी हो रहा है. तो दैट रीजन इज कॉल्ड एज अ प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा. अब जब ये ग्रीन वाला हिस्से में अगर आएगा तो यहाँ पे सारा सिक्रीशन भी आ जाएगा. तो आई कैन से दैट इट कैरीज यूरिन एज वेल एज सीमेन आल्सो. सीमेन का मतलब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया. सीमेन का मतलब क्या होता है? देखो 3 ग्लैंड्स है ना. कौन से 3 ग्लैंड है? समाइनल वेसिकल, कोपस ग्लैंड, प्रोस्टैटिक ग्लैंड. ये तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसे, और उसके अंदर जब हम स्पर्म को मिक्स करेंगे तो उसे हम कहेंगे सीमेन. अंडरस्टूड? सीमेन क्या है? Accessory gland secretion plus sperm is equal to semen. If you want, you can write down accessory gland secretion. Accessory gland secretion. Accessory glands में कौन आते हैं? 3 glands आते हैं. चाहिए तो आप ब्रैकेट में लिख लो. Accessory glands में कौन है? Seminal vesicle. देख लो यहाँ पे. Seminal vesicle, corpus gland, spelling देख लो, prostate gland. ये तीनों क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड है. समाइनल वेसिकल, कोपस ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये तीनों क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड है. तो इनका सिक्रीशन प्लस जो टेस्टिस ने बनाया हुआ स्पर्म, इन दोनों को मिला के हम सीमेन कहते हैं. सीमेन, SEMEN. तो जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है इट इज कैरिंग बोथ यूरिन प्लस सीमेन. फिर पिनाइल यूरेथ्रा मीन्स which is present inside the penis region. इसके लिए हम उसको पिनाइल यूरेथ्रा कह रहे हैं. So again it is carrying both the things, urine plus sperm, but at different times. Obviously same time पे urine और sperm नहीं release होगा, but it is a common passage. That what is been said. So it is a common passage for urine and sperm, hence known as the urinogenital duct. Understood? Understood all of you, beta? Shall I move Yes. forward? Now let us learn about the penis. Now this diagram which you can see is the TS of penis, means we have cut it and then we have understood ki what are the regions present over here inside. So human penis is muscular without bones. It is an erectile organ and it is suspended in the pubic region in front of the scrotum. In front of the scrotum. Why I am specifying over here in front of the scrotum? Because in some animals like the kangaroos में उल्टा होता है. Scrotum is in the anterior part and penis is on the posterior side. ठीक है? So we don't have to learn about the kangaroos, but in case of human beings, it is present in front of the scrotal sac. Urethra passes through the length of the penis that just now we have seen. Now, this particular thing which has been written down is the reason why it is muscular and erectile organ. The question arises that कि अगर ये muscular है तो ये erection कैसे कर सकता है? तो erection का answer देने के लिए we have to understand the 3 different tissues. So there are 3 different tissues, erectile tissues. They are present. How they are present? You can see 2 posterolateral. You can see this region posterolateral, which are called as a corpora cavernosa. Cavernosa. And 1 median you can see corpus spongiosum. Corpus spongiosum. So कितने हो गए? 3 हो गए. 1, 2 and 3. 2 corpora cavernosa का और 1 टिश्यू किसका प्रेजेंट है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का. तो ये जो 3 टिश्यूज है ना बेटा, यही हेल्प करते हैं फॉर द इरेक्शन. ठीक है? और द इट इज इरेक्टाइल टिश्यूज. Now at you can see again at the tip corpus spongiosum is enlarged. यही corpus and spongiosum enlarged होता है and it forms a soft and highly sensitive region which is called as a glans penis. Glans penis.
glans penis has been covered with a skin. हाँ, उस स्किन को हम foreskin या prepuce कहते हैं. ठीक है. This glans penis has been covered with a fold of skin which is called as a prepuce or a foreskin. ठीक है. In some communities, this foreskin has been cut. ठीक है. Especially in the Muslim communities, this foreskin has been cut. ठीक है. Now, what is the function of the penis? It is a copulatory organ. What do you mean by copulation? Copulation का मतलब होता है sexual intercourse. ठीक है. Sexual intercourse को ही copulation भी कहा जाता है. ठीक है. So penis and scrotum forms the external genitalia. Okay, just go through all of you. Any doubt you can ask me. Any doubt? So you can see that this region is called as a glans penis. ये region क्या है? जो swollen part है. This is the glans penis और इसके ऊपर होता है foreskin. Foreskin को ही हम prepuce भी कहते हैं. इसके अंदर बहुत सारे terms है बेटा. जो आप पढ़ोगे बार बार पढ़ोगे तो ही उसका revision होगा. As I told you just now, in Islamic communities, this foreskin has been cut, जिसको हम कहते हैं circumcision. Done? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Now let us learn about the accessory glands. So accessory glands में sorry बेटा, accessory glands में we have to learn 3 glands: seminal vesicle, corpus gland, prostate gland. पहले हम seminal vesicle समझते हैं. So you can see the blue color part, seminal vesicle. So they are paired. Paired मतलब दो हैं, sac के जैसा है. Where they are present posterior inferior to the urinary bladder. This part is the urinary bladder. What does it secrete? So it secretes alkaline, viscous. Viscous का मतलब क्या होता है बेटा? गाढ़ा. ठीक है. Alkaline viscous fluid which is called as a seminal fluid. Seminal fluid. It is contributing 60% वॉल्यूम टू द सीमेन. मतलब सबसे ज्यादा सीमेन के अंदर सेमाइनल फ्लूइड ही होता है. 60% सेमाइनल फ्लूइड होता है, फिर 40% में ये कोपर्स और प्रोस्टेट के सिक्रीशन होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम. व्हाट डज इट कंटेन्स? सो सेमाइनल फ्लूइड कंटेन्स फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट कि फाइब्रिनोजन. What is the use of fibrinogen? Who will tell me? Who will tell me? Blood flow coagulation. क्या बेटा? Blood coagulation. Yes, blood coagulation में मदद करता है. ठीक है. So सीमेन भी when it is outside the body it coagulates. ठीक है. coagulate होने का जो property है वो इसी के वजह से होता है. Then it also contains the prostaglandins also. So here the functions has been given. Fructose
is an energy provider. Fructose is a type of carbohydrate, na? So it provides energy for the sperm to swim. Fibrinogen, it is, we have learned in circulation lesson. So it helps in coagulation of the semen for coagulation. Prostaglandins, it stimulates and stimulate contractions in female reproductive tract. तो प्रोस्टाग्लैंडिन से क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा जिससे कि स्पर्म तेजी से आगे बढ़ पाएगा. One more point I just wanted to specify over here is फ्रुक्टोज सिर्फ और सिर्फ मेल सिस्टम में ही बनता है, बाकी के ना फीमेल के बॉडी में कहीं पे भी फ्रुक्टोज तैयार नहीं होता है. सिर्फ फ्रुक्टोज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तैयार होता है, वो भी सिर्फ सेमाइनल वेसिकल में. ठीक है. सो बाय द डिटेक्शन ऑफ फ्रुक्टोज, द फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में इसका कंफर्मेशन हो पाता है कि वेदर द चाइल्ड हैज बीन रेप्ड और नॉट. ठीक है. तो रेप केस अगर कंफर्म करना है तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स किसको कंफर्म करते हैं, प्रेजेंस ऑफ द फ्रुक्टोज. ठीक है. तो ये फ्रुक्टोज है, दैट मींस there is been raped, बिकॉज कहीं पे भी और फ्रुक्टोज नहीं तैयार होता. ये प्रोस्टाग्लैंडिन याद रखो, ये लेबर पेन के लिए भी आप पढ़ोगे बाद में प्रेगनेंसी में. ठीक है. सो प्रोस्टाग्लैंडिन मेल में सेमाइनल वेसिकल में ये प्रोस्टाग्लैंडिन मदद करता है फॉर द फीमेल ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए. यही प्रोस्टाग्लैंडिन मैं आपको बाद में भी पढ़ाऊंगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये रिलीज होता है फॉर इंडक्शन ऑफ द लेबर पेन. ठीक है. तो याद रखना प्रोस्टाग्लैंडिन. नेक्स्ट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड. You can see the labeling again. Prostaglandin is a walnut-sized gland where it is present between the surrounds the urethra between the bladder and the penis. इसका secretion कैसा होता है? It is slightly acidic, milky, white prostatic fluid. It is contributing 30% of the semen. तो 60 seminal था, 30 prostate है. इसमें क्या present होता है? Citric acid, acid phosphatase and many other enzymes also. Acid phosphatase का काम क्या है? It protects the sperm from acidic environment of the female reproductive tract. Afterwards, I will be teaching you that the female reproductive tract is acidic in nature. Why it is acidic? I will explain you that time. But ये acid को neutralize करने के लिए, ठीक है, उसको protect करने के लिए ये acid phosphatase मदद करता है. Done. Next, third one is the Cooper's gland. Cooper's gland can also be called as bulbourethral gland. Bulbourethral gland. You can see in the diagram, it is small pea-sized paired gland. Paired gland मतलब again ये दो है, ठीक है. Pea के size का होता है, paired gland है, which is present on either side of the urethra. You can see that it is situated on either side of the urethra. इसका जो secretion है वो अल्कलाइन है, विस्कस है, अगेन अल्कलाइन और विस्कस है. What does it does? It neutralizes the acid. क्योंकि अल्कलाइन है तो it is neutralizing the acid in the penile urethra due to previous urination. Important point. देखो urination होने के बाद acidic condition form हो जाता है in the tract. So यूरिनेशन के बाद वो जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये कोपर्स ग्लैंड मदद करता है. अंडरस्टूड. तो कोपर्स ग्लैंड का काम में बेसिकली काम क्या है? टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन द पेनिस रीजन, पेनाइल यूरेथ्रा रीजन ड्यू टू द प्रीवियस यूरिनेशन. और क्या काम करता है ये? इट इज लुब्रिकेटिंग द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कॉप्युलेशन. Understood? मिस पीछे लो ना एक बार.
Done, miss. Okay. Now semen क्या है? You can just note down. It is a whitish viscous alkaline fluid. कितना pH होता है? 7.2 to 7.7. No doubt it is ejaculated by the male reproductive system. क्या क्या होता है उसमें? Sperm. Sperm को हम spermatozoa भी कहते हैं. Sperm को ही spermatozoa भी कहा जाता है. And mixture of the secretion like seminal vesicle, prostaglandin and corpus gland. एक ejaculation में, one ejaculation में there is 3 to 4 ml of semen released, and it contains, just imagine this, 4 ml semen के अंदर 4 millions of sperm होता है. 4 millions of sperm होता है. So write down the assignment today. Homework for two homeworks I've given you. ये भी लिख लो. स्क्रीनशॉट ले लो और ये होमवर्क हो जाना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में. स्टेरिलिटी का मतलब मैंने अभी आपको बताया था. स्टेरिलिटी मींस व्हिच कैन नॉट प्रोड्यूस द स्पर्म और व्हिच कैन नॉट प्रोड्यूस द गैमेट. उसको हम स्टेराइल बोलते हैं. इसका आंसर क्या आना चाहिए? टेल मी. ये डैश में क्या आना चाहिए? डू यू रिमेम्बर द नेम? क्रिप्टोकाइडिज्म. क्रिप्टोकाइडिज्म. डैश कैरीज ओनली यूरिन. अभी आपका आंसर आना चाहिए. आपको मैंने बताया था. तो कौन सा रीजन? प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा. वेरी गुड बच्चा. हेलो मैम. हाँ बेटा बोलो. मैम फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा लिखना है ना, मतलब ग्लैंड्स के बारे में क्या? सब. क्या बेटा? जोर से बोलो थोड़ा. मैम फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्क्राइब द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हाँ उसमें पूरा लिखना है ग्लैंड्स के बारे में और विद डायग्राम. हाँ. तो व्हाट यू हैव टू राइट डाउन फॉर 4 मार्क्स इट इज ना. तो यू हैव टू राइट डाउन विद डायग्राम. जो मैंने अभी आपको सब एक्सप्लेन किया. आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द टेस्टिस. आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द एपिडिडाइमिस. आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द वासा डिफरेंस. I have explained everything which I have explained you for the male reproductive system. You will be referring your textbook and you will be writing down the answer with a diagram. Understood? Yes ma'am. आप पढ़ो एक बार टेक्स्ट बुक भी रीड करोगे तो जो भी आज मैंने पढ़ा है तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा. इसीलिए. और डायग्राम मैंने आपको बताया है. आपने सबने फोटो लिया है उसका. वही डायग्राम ड्रॉ करना है जो मैंने आपको वेरी फर्स्ट दिखाया था. Shall I show you the diagram once again? हाँ? The very first diagram which I have shown you. ये सारे चीजें लिखने हैं आपको. ये जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है. The diagram should not exceed more than 15 lines. 15 lines के अंदर आपको यही डायग्राम ड्रॉ करना है. It's a simple diagram. Understood? So you have to write down about everything. You have to write down about testes, epididymis. You will be writing about the vasa difference. You will be writing about the ejaculatory duct. You will be writing about urethra, then penis. Okay, then glands. All the 3 glands you are writing. So this is whatever we have learned today, that is a part of male reproductive system. So that you are going to write down for your this answer. Understood? Yes. Yes So ma'am. now we will stop and you just revise